Dear students, in today's lecture I am going to explain how to solve a numerical based on alkalinity of water. These numericals are very easy to solve if we read exercise carefully and understand the exercise properly. तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज को समझकर इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, if you find this video helpful in your study, then please like it, share it, and do not forget to subscribe my channel Easy Engineering Chemistry. In this numerical, a sample of water was alkaline both to phenolphthalein and methyl orange. 50 ml of this water sample required 15 ml of N by 50 H2SO4 for phenolphthalein endpoint and another 10 ml for complete neutralization. कैलकुलेट टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ अल्कलिनिटी इन ppm. तो इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है कि हमने 50 ml वाटर सैंपल लिया है, उसमें हमने फिनॉल्फ्थलीन इंडिकेटर ऐड किया और उसके बाद हमने N/50 H2SO4 ऐड किया 15 ml और हमें फिनॉल्फ्थलीन एंड पॉइंट मिल गया, मीन्स पिंक कलर डिसअपियर हो गया. जब हमने 15 ml ऐड कर लिया उसके बाद हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला और उसके बाद फिर 10 ml हमने उसमें ऐड किया तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ मतलब हमें मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट मिल गया. तो इस वाटर सैंपल में हमें टाइप ऑफ अल्कलिनिटी और एक्सटेंट ऑफ अल्कलिनिटी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहली बात हम करेंगे गिवन. इस एक्सरसाइज में हमें क्या गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल हमने लिखा, दिस इज 50 ml. उसके बाद हमने लिया नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ये दिया है N/50. वॉल्यूम ऑफ एसिड अप टू P एंड पॉइंट, दिस इज 15 ml. वॉल्यूम ऑफ एसिड अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट. तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 15 + 10, सो दिस इज़ 25 ml. क्योंकि इन्होंने ये यूज़ किया है वर्ड अनदर 10 ml फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. हाँ, 15 ml ऐड करने के बाद और 10 ml ऐड किया था, तब उन्हें मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट मिला था. तो यहाँ पर हमने 15 + 10 किया, सो मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट पर जो टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड था, दिस इज 25 ml. नाउ वी विल सॉल्व दिस. सो फर्स्ट वी विल डिटरमाइन फिनॉल्फ्थलीन अल्कलिनिटी. सो डिटर्मिनेशन ऑफ फिनॉल्फ्थलीन अल्कलिनिटी. हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे N1V1 = N2V2. N1 is the normality of water sample, V1 is the volume of water sample, N2 is the normality of acid, V2 is the volume of acid up to P end point, because we are determining phenolphthalein alkalinity here. So N1 is the normality of water sample and it is unknown, so we write down this N1 as it is. V1 is the volume of water sample and it is 50 here, so we write down this 50. N2 is the normality of acid, it is again N/50 and V2 is the volume of acid up to phenolphthalein end point and this is 15, so 15. From here we will calculate this normality of water sample. So this is 15/50. So this is the normality of water sample. Now we have to calculate strength of phenolphthalein alkalinity expressed by कैपिटल P. स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमेशा नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट होता है और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का लिया जाएगा. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इज टेकन बिकॉज वी एक्सप्रेस आवर फिनॉल्फ्थलीन अल्कलिनिटी एंड मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट. सो N1 इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर सैंपल, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट की है, इसे हमने यहाँ लिखा 15/50. इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इज़ 50. यहाँ से रिजल्ट मिलेगा ग्राम्स पर लीटर में.
We want our result in milligram per liter or ppm, so we will multiply this with 1000. So 1 by 50 into 15 upon 50 into 50 into 1000 मिलीग्राम पर लीटर. जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 300 मिलीग्राम पर लीटर और ppm. सो P हमें मिला 300 ppm. So this is the phenolphthalein alkalinity 300 ppm. Now in next step we will calculate methyl orange alkalinity. So next step is determination of methyl orange alkalinity expressed by capital M. Again we will write down this N1V1 is equal to N2V2. N1 is the normality of water sample. It is unknown for this methyl orange alkalinity. V1 is the volume of water sample 50 given है numerical में. N2 is the normality of acid N by 50 given है. Here V2 is the volume of acid up to methyl orange endpoint or volume of acid required for complete neutralization. So this is 25 ml. ये हमने 15 plus 10 करके फाइंड आउट किया था, तो ये था 25 ml. यहाँ से हमने N1 कैलकुलेट किया N by 50 into 25 by 50. Now we have to calculate strength of methyl orange alkalinity expressed by capital M. So strength is equal to normality into equivalent weight of CaCO3. यहाँ पर हम लेंगे नॉर्मलिटी वाटर सैंपल की, हमें फाइंड आउट हो चुकी है. यहाँ से इसकी वैल्यू हम लिखेंगे. सो दिस इज़ 25 by 50 into 50 into equivalent weight of CaCO3 is again 50. यहाँ से रिज़ल्ट मिला ग्राम्स पर लीटर में, इसे हमने कन्वर्ट किया मिलीग्राम पर लीटर में. सो 25 upon 50 into 50 into 1000 मिलीग्राम पर लीटर. फाइन. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 500 मिलीग्राम पर लीटर और ppm. फाइन. अब इस केस में P हमें मिला था 300 ppm, M की वैल्यू आई 500 ppm. अब हम इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे. M को हमने क्या करना है, हाफ M करके देखना है. तो 500 डिवाइडेड बाय 2 किया, सो दिस इज़ 250. यहाँ मैंने लिखा 300, यहाँ मैंने लिखा 250. दिस 300 इज़ ग्रेटर देन 250. So 300 is the value of P. P is greater than 250. 250 क्या है, हाफ M है. So P is greater than half M. तो P और M में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होगा वो होगा P is greater than half M. सेम रिलेशन को आप रीडिंग्स की हेल्प से भी फाइंड आउट करते हैं. अगर आप 15 एंड 25 ये जो M एंड पॉइंट हमें मिला था और P एंड पॉइंट हमें मिला था, इसको लेके आप करेंगे तब भी आपको सेम रिज़ल्ट मिल जाएगा. क्योंकि जब आप 25 को 2 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 12.5. P एंड पॉइंट आपको मिला था 15 पर. 15 इज़ ग्रेटर देन 12.5. इसका मतलब हुआ P इज़ ग्रेटर देन हाफ M. तो सिर्फ रीडिंग देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि P और M में कौन सी कंडीशन इस्टेब्लिश होगी. और जब आपको कंडीशन पता चल जाएगी तो आप इजीली आयंस भी बता सकते हैं. सो व्हेन P इज़ ग्रेटर देन हाफ M एग्जिस्ट इन वाटर सैंपल देन कार्बोनेट आयंस एंड OH माइनस आयंस आर प्रेजेंट in given sample. Now we have to find out concentration of carbonate ion and this OH minus ion. तो carbonate ion का अगर हमें concentration पता लगाना है तो P is greater than half M की जब condition होती है तो हम formula use करते हैं 2M minus P. ये
आयंस के कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के जो फॉर्मूले हैं उन्हें मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। तो कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन हमें मिलेगा 2m-p से। यहाँ पर हमने लिखा m का वैल्यू आया है 500, p का वैल्यू है 300। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 2 × 200 मीन्स दिस इज़ 400 ppm. So this is the concentration of carbonate ion, 400 ppm. Now we have to calculate concentration of OH minus ions. OH minus ion का concentration अगर हमें पता लगाना है तो OH आयन का कंसंट्रेशन अगर हमें पता लगाना है देन वी हैव टू यूज़ फार्मूला 2p - m। इस फार्मूले को हमें यूज़ करना होगा। p की वैल्यू हमारे पास है 300, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। m की वैल्यू है 500, सो 300 × 2 दिस इज़ 600 minus 500, we will get 100 ppm. So concentration of OH minus is 100 ppm. तो इस केस में फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी हमें मिली है 300 ppm, मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी मिली है 500 ppm. This is the alkalinity present in water sample. And type of alkalinity causing ions are carbonate and hydroxide. Concentration of carbonate ion is 400 ppm, concentration of हाइड्रोक्साइड आयन इज़ 100 ppm. मैंने आपको बताया था कि मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अल्कलिनिटी कॉजिंग आयंस इन वाटर सैंपल। तो यहाँ पर हम ये चेक लगा के ज़रूर देखेंगे कि m इज़ इक्वल टू OH माइनस प्लस CO3 2 माइनस हो रहा है या नहीं, क्योंकि इस केस में हमारे पास वाटर सैंपल में OH माइनस और CO3 2 माइनस आयन से बाइकार्बोनेट आयंस नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा OH माइनस प्लस CO3 2 माइनस। OH माइनस का कंसंट्रेशन हमें मिला है 100 और 400 हमें मिला है कार्बोनेट का कंसंट्रेशन। सो दिस इज़ इक्वल टू 500 और हमारे पास मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी भी कितनी आई है 500. So methyl orange alkalinity is equal to 500. Methyl orange alkalinity is equal to sum of alkalinity causing ions present in water sample. तो ये चेक आप ज़रूर लगाएं ताकि आप इस न्यूमेरिकल में मिस्टेक करने से बच सकें। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, हमें सिर्फ सेम N1V1 = N2V2 फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन उसमें जो वैल्यू सब्सटीट्यूट की जानी है V2 की, वॉल्यूम ऑफ एसिड, वो चेंज होता है और हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। तो अगर हम एक्सरसाइज में देखकर V2 क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना वॉल्यूम फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट तक लगा है और कितना वॉल्यूम हमें मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक लगा है, तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।